So today we are going to talk about modeling and stimulus control, which is one of an observational learning therapeutic technique. Since the very beginning, you have been learning a lot about modeling and stimulus control because Albert Bandura was one of a very famous social learning theorist who talked about the observational learning and the concept of modeling. And modeling is something which we used to see each day at different forums, at social media, at television screens, at cinemas, and in our daily lives. People around us do certain behaviors, and at times the children are just going to copy them, and at times that adults are going to retain those behaviors in their minds, and at specific situations they are going to produce them. Stimulus control is also very much linked to modeling behavior and conditional theory, and we will be talking about that as well. So looking at the modeling, the process of learning by watching others is a therapeutic technique which used to affect behavior change. So, as such, whenever you are going to see certain things going around you, they are going to create some kind of impact to you. Either they could be something good you are looking at, or they could be something maybe not very good around you which you are going to see. But whatever it is, you are going to, have some impact on you. So the use of modeling in psychotherapy was influenced by the research of social learning theories, as I already mentioned, Albert Bandura, who studied observation learning in children, and it was particularly in relation to aggression. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एल्बर्ट बंडूरा ने किए जिसमें उसने इस तरह की मूवीज बनाई जिसके अंदर जो है वो इस तरह की मूवीज जो है वो शो की स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जो था वो दिखाया गया था, और उसके साथ कंट्रोल ग्रुप लिया जिसमें उन्होंने इस तरह की मूवीज दिखाई जो बिल्कुल पीस और हार्मनी की थी, जिसमें कोई वायलेंस नहीं था। और जब वो बच्चों ने देखी, उसके बाद उनका जो बिहेवियर स्टडी किया गया, दैट वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. So those children who tend to see aggressive movies and violence or something like that, they tend to depict those behaviors more. अब बात ये है कि जब हम लोग अपनी जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा गन्स के साथ खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा हार्म एक दूसरे को देने की कोशिश की जा रही होती है, या ऐसी वीडियो गेम्स खेलते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी जिसको फॉरेंसिक साइकोलॉजी के टर्म में कहा जाता है कि ये वायलेंट गेम्स हैं, और वहाँ से वो वायलेंस सीखते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसी वायलेंस को वो जो है वो अपने मैनिफेस्ट करते हैं. So basically, Albert Bandura was very much right that if we want to change any specific behavior and if we want to see the demonstration of any specific behavior, तो आप अपने इर्द गिर्द उस behavior को देखेंगे तो आप उसे एक्वायर कर लेंगे, या आप अगर उसको चेंज होता हुआ देखेंगे तो आप भी अपने आप को चेंज कर लेंगे. तो इसीलिए मॉडलिंग को वाइकैरियस लर्निंग जो है वो भी कहा जाता है, because the client actually do not need to perform the behavior in order to learn it, but हमारी जो अपनी psychological space है, हमारी जो instincts हैं, हमारा जो behavior है वो automatically उन चीज़ों को retain कर लेता है. Modeling basically, then conventionally it was just a modeling behavior and modeling plan, and then it turns into a therapy जो कि social learning theory पर base करती है. This theory emphasizes the importance of learning from observation and imitating role models and learning about rewards and punishment that follows behavior. अब गर्ल्स, आपको मैं एक बड़ी कैजुअल सी एग्जांपल देती हूँ जो हम आप एवरीडे लाइफ में हम सब अपने घरों में एग्जामिन करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे हमें जिन बिहेवियर्स के ऊपर हमारे पेरेंट्स रीइंफोर्स करते हैं, जिनके ऊपर हमें पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, जनरली हम देखते हैं कि वो बिहेवियर्स हमारे स्ट्रेंथन होते जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनिंग प्रोसेस जो आप सबको पता है. और उसके बाद वो बिहेवियर्स जिनके ऊपर हमारे फादर, मदर्स, हमारे एल्डर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, कंडेम करते हैं, अनप्लेजेंट लुक देते हैं या स्माइल देते हैं, कोई सार्केस्टिक, तो हमें पता लग जाता है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, और हमें इनको मॉडिफाई करना है, इनको हमें चेंज करना है. So basically this technique is being used to eliminate unwanted behaviors. जैसे कि हमें अगर बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे behaviors होते हैं जो unwanted होते हैं, tantrum show करते हैं बच्चे,
उसके बाद बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा अपना छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो अपनी बहुत ज्यादा डिमांड्स करते हैं और फिर वो अपना रोना शुरू कर देते हैं। तो उन बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर बहुत सारे अनवांटेड बिहेवियर्स में एक्सेसिव एग्जाइटीज और फियर्स भी आ सकते हैं, उसके बाद अनप्लेजेंट हैबिट्स भी आ सकती हैं, कंडक्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। So basically, this theory facilitates the learning of social behaviors and many more beyond this. और हम इसे different health problems के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए रिसेंट डेज में हम मॉडलिंग को देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर देयर चेंज इन देयर डाइटिंग एंड ईटिंग बिहेवियर्स। इसके अलावा वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मॉडलिंग को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अब आप देखो जितनी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाती है उसमें से जो हमें अच्छी लगती है हम पिक एंड चूज करके उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, वो सब हम मॉडलिंग की बेसिस पे कर रहे होते हैं। सो इट मे बी आइदर यूज्ड टू स्ट्रेंथन और वीकन द प्रीवियसली लर्न बिहेवियर। कुछ बिहेवियर सिर्फ हमारे मॉडलिंग की वजह से वीकन भी हो सकते हैं। कोई एग्जांपल देना चाहेगा मुझे कोई इसी ऐसे बिहेवियर की जो मॉडलिंग की वजह से उसका वीकन हो गया हो या उसने देखा हो कि मॉडलिंग जो है वो हमारे बिहेवियर्स को किस तरह मॉडिफाई करती है? Any one of you? मैम, जो ग्रुप ऑफ किड्स थे एंड दे आर वाचिंग सम काइंड ऑफ मूवी जिसमें जो है बैड बिहेवियर ज्यादा होते हैं, और एक दूसरा ग्रुप होता है जिसमें एक ज्यादा गुड बिहेवियर शो हो रहे होते हैं। तो जो लोग देखते हैं बैड बिहेवियर्स और फाइटिंग विद ईच अदर और इस तरह की चीजें, तो वो मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो उनके सामने चीजें हो रही होती हैं फिर वो उसी तरीके से ही वो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह की चीजों को। मतलब Anyone अगर वो else? ठीक है मैम, सायरा। ठीक है, मैं एग्जांपल एक शेयर करूंगी। जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक जो हम्म इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये जितने भी आगे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आपको उसके रिव्यूज देते हैं और वो खुद भी पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं, तो दैट सॉर्ट ऑफ सम मॉडलिंग। अगर हम इंस्पायर होते हैं तो हम वो चीज़ यूज करते हैं। लाइक फॉर हम्म एग्जांपल कुछ ग्रुप ऑफ लाइक डाइटिशियंस हैं, उनका कोई ग्रुप है, वो डेली अपना ट्रीट प्लान शेयर करते हैं कि आज हमने ये खाया है, अगर आप ये खाएंगे तो ये हेल्दी रहेगा। तो ये हम्म भी सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग है। बिल्कुल। और हमारी जो एडवर्टीजमेंट एंड इंडस्ट्री जो है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर की जा रही है, उसका मकसद ही यही है क्योंकि वो सोशल लर्निंग थ्योरी का उसका ऊपर इफेक्ट इतना स्ट्रांग इस्टेब्लिश हो चुका है और हमें पता है कि लोग फॉलो करते हैं। तो इस वजह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलती है और वो प्रूफ करती है कि यस, social learning theory exists and a modeling therapy and observational learning has its impact on general community. So there are several factors which increase the effectiveness of modeling therapy in changing behavior. Modeling effects have been shown to be more powerful in certain situations, such as the model is highly skilled in enacting the behavior. Like it's very likable, बहुत admirable है, बड़ा friendly है। यहाँ तक अभी मैं ब्रेक लगाती हूँ। सेम सेक्स एंड एज को हम बाद में देखते हैं। जब हम लोग टीवी पे कोई भी ऐसा मॉडल देखते हैं जिसको हम रिलेट करते हैं कि ये बंदा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हाईली हमारी सोसाइटी में इसको पसंद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, इसका इमेज बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है कि जिस एड में वो काम करे वो शायद प्रोबेबली उस प्रोडक्ट को यूज भी कर रहा होगा, राइट? जैसे हम बहुत सारी फेयरनेस क्रीम्स का एड देखते हैं, लॉन के ड्रेसेस का एड देखते हैं, हम उस लॉन को रिमेम्बर करते हैं कि जी ये जो लॉन थी ये फलानी मॉडल ने पहनी हुई थी, राइट? हालांकि वो उसका प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वो उसको डिस्प्ले कर रही है तो हमें उसकी वजह से वो याद रह जाता है। फिर हम रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स। अगर हमें अपने जेंडर वाइज लगता है कि अच्छा जी ये तो जो है ये फीमेल ये कर सकती है, ये इतना वेट रिड्यूस कर सकती है इस प्रोडक्ट को यूज करके, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारी एज की है, इस पर ये शूज सूट कर रहे हैं तो हमारे भी पहनेंगे तो हमें भी सूट करेंगे। So things like that. और ये सिर्फ नहीं है कि it only tend to be applicable to children, but yet it is applicable to all ages and all genders. अब देखो कि इवन जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं, जब वो कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं तो अक्सर मैंने ऐसे कमेंट सुने हैं कि वो कहते हैं हमारी एज का है लेकिन बड़ा फिट लग रहा है। दैट गिव्स अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू देम कि उनकी एज में भी लोग फिट हो सकते हैं, उनकी एज में भी लोग जो हैं वो अपनी अपीयरेंस को मेंटेन रख सकते हैं, राइट? सो इस तरह की जो चीजें हैं वो बेसिकली हमें हेल्प करती हैं टू गेट आवर सेल्फ रिवॉर्डेड एंड हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं उस बिहेवियर।
So the target behavior is clearly demonstrated with very few unnecessary detail. It's presented from the least to the most difficult level of a behavior. Several different models are used to perform the same behavior. अब बेसिकली जब हम लोग एक थेरेपी में एक बिहेवियर के चेंज की बात कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें हमें बहुत इजीली किसी भी बिहेवियर की मॉडिफिकेशन के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो लाइव मॉडलिंग से भी मिल जाती हैं, हमें डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हमें रिकॉर्डेड मॉडल्स से भी मिल जाती हैं जो ऑलरेडी हमारे सोशल सेटिंग में अवेलेबल होती हैं। तो हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ दोज मॉडल्स, चाहे वो एक्सरसाइज की टेक्निक्स हैं, चाहे वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स हैं। और अब तो इवन आप देखो कि सोशल लर्निंग जो है वो हमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स के टिप्स भी सिखा रही होती है। अब देखिए कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको आई एम श्योर आप सब सुनते होंगे, जैसे ये एक आजकल कासिम अली शाह को बहुत लोग सुनते हैं, फिर ये सुतीव सहरा को बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव थिंकर्स हैं और ये एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव एनर्जी फिल करने की बात करते हैं। तो उन और वो डील करना सिखाते हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो बहुत सारी उनकी वीडियोस लोग सुनते हैं कि जी बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, या बीवी को खामन के साथ कैसा, उसके फराइज क्या हैं, या औलाद के साथ कैसे मोहब्बत करो। तो लाइक दीज आर द वेज जिनको हम सुनते हैं और फिर हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ओके ये एक तरीका है, इसका ये फायदा है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम अपने रिलेशनशिप्स को भी बेसिकली इसी बेसिस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। So, would anyone would like to contribute here anything, any personal experience या कोई बात जो उनके जहन में हो आपके सबके? मैम हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी तो काफी रोल प्ले करती है ना मॉडलिंग में, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से। ये मैंने आपकी देख नहीं रही कि कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है ये, प्लीज? रिदा मैम रिदा। हाँ ठीक है, मैंने आवाज से पहचाना है, देख लो। अच्छा रिदा, आपकी बात बहुत वैलिड है, क्योंकि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करी है। नॉट ओनली लाइक आपसे शायद मैं क्लास में पहले भी एग्जांपल शेयर करती रही हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो मूवीज का एक स्टाइल था, एंड इट हैड अ काइंड ऑफ अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन अ जनरेशन हु रेजेस ड्यूरिंग द एरा ऑफ 90s, और उन्होंने वहां से बहुत सारा नेगेटिव स्टफ सीखा, जिसका इम्पैक्ट हमें अब उनकी सोसाइटी पर नजर आता है कि वहां पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल असॉल्ट और इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है, बिकॉज वो एक पूरी जनरेशन जो रेज हुई और उन्होंने ये सीखा। इसी तरह हमारे यहाँ भी एक स्पेसिफिक जो ऑरा रहा जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हमारी सोसाइटी जो थी वो डेवलप हो रही थी, उसका इफेक्ट हमने टेररिज्म की सूरत में देखा। तो बेसिकली जो भी कुछ हमारे मीडिया पे दिखाया जा रहा होता है, हमारी इंडस्ट्री जो जिसको लोग देख रहे होते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर, उसके इम्पैक्ट हमारी कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों पर होते हैं। सो दैट इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट कि हम क्या देख रहे हैं या हम क्या चीज जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। अब हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं देखती हूँ बड़ी पॉजिटिव चीजें आती हैं, बड़े पॉजिटिव ड्रामास आते हैं और उनका वाकई बहुत ही एक हेल्दी इम्पैक्ट आ रहा होता है। जैसे कुछ ड्रामास मैंने देखे जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स को फोकस कर रहे थे, इवन वो रोमांटिक भी ड्रामास थे, बट दे वर गिविंग वेरी गुड मैसेज, क्योंकि रोमांस भी हमारी लाइफ का एक इमोशन है, हम उसको निगेट नहीं कर सकते। तो उसमें मैंने कुछ बड़े अच्छे ड्रामास देखे, फिर मैंने सूफीज़म पे बड़े अच्छे ड्रामास देखे, और आप लोगों से हम शेयरिंग भी करते रहे कि अलिफ ड्रामा अच्छा आ रहा है, ये शहरजाद अच्छा है, ये अच्छा है। इसमें कुछ बातें हमें इस तरह से डिफरेंट नजर आती हैं जो अच्छी थी, और भी कई ऐसे नाम हैं। लेकिन अभी मैं जैसे लाइक देख रही हूँ रिसेंटली एक अभी सोशल मीडिया, क्योंकि इज अ वेरी पावरफुल टूल, और उस पर आप जैसे यंग बच्चे बड़ी डिबेट्स जनरेट करते हैं, उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि इस वक्त एक रिलेशनशिप्स के हवाले से एक बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक आ रही है सोशल मीडिया से कि रिलेशनशिप्स की सैनिटी को बहुत ज्यादा डैमेज किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ ड्रामाज। इस पे बड़ी मीम्स भी बन रही हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप जो है वो ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई सैनिटी नहीं है, कि एक सिस्टर इज अगेंस्ट अ सिस्टर, फादर इन लॉ इज अगेंस्ट अ डॉटर, और एक अजीब सी एक वो आ गई है कोई जेलसी टाइप से ड्रामास, और दिस इज नॉट अ गुड वे। इसके बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा है या कोई बात अगर आप इसके हवाले से शेयर करना चाहो? यस मैम, ये ड्रामे जो अब आजकल आ रहे हैं ना, क्योंकि पहले एक ट्रेंड चल रहा था, एक बहुत लेसन बेस्ड ड्रामाज आ रहे थे, अब लेकिन ये लास्ट मतलब मंथ से ये ड्रामाज आए हैं। लाइक अभी एक शुरू ही हुआ है AR वाई पर ही शुरू हुआ है, जलन, जिसमें सिस्टर जो है ना
अपने ब्रदर इन लॉ को पे इंटरेस्टेड है, मतलब उसके अंदर जलन है कि मेरी बहन का इतनी अच्छी जगह रिश्ता क्यों हो गया। तो इस पे काफी डिबेट हुई है कि आप इस तरह के ड्रामास लगाई क्यों रहे हैं, आप प्रमोट ही क्यों कर रहे हैं, या आप लोगों एग्जैक्टली। के अंदर ये वाली थिंकिंग डेवलप ही क्यों कर रहे हैं कि आपको इस तरह से ये जलन, आपको ये चीज होनी चाहिए अपनी बहन के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट। तो इस पे काफी डिबेट हो रही है। That's exactly the point I was trying to raise कि हमें इसको condemn भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी व्यूअरशिप को ब्रेक करेंगे तो उस तरह की चीजें जो हैं वो हमें डेफिनेटली फिर नहीं दिखाई जाएंगी, बट दे सर्टेनली हैव एन इम्पैक्ट। चलिए हम मॉडलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, और इसको अब हमने जो एग्जांपल्स की बात की है ना अभी, जैसे हम अब में से किसी ने कोई ड्रामा देखा होगा, अब इसको ना इस स्टेज ऑफ मॉडलिंग प्रोसेस को उसमें आप अंडरस्टैंड करो। Like there are the basically 5 stages of modeling process. Number 1 is attention, right? पहले कोई मॉडल होता है जो आपको अपनी तरफ आपकी अटेंशन देता है। जैसे अब हर बंदे को हर चीज अटेंशन नहीं देगी, right? So you have to see that which thing is going to give attention or create attention for which person. Like अभी मैं सुन रही थी, someone says to me कि जी तुमने वो ड्रामा देखे दूसरी बीवी, वो फहद मुस्तफा का आ रहा है ARY पर। मैंने कहा नो आई हैवंट सीन दैट। तो अच्छा है तो चलो मैं देखूंगी। तो कहने लगी हाँ वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा कपल था, उसके बारे में थी, लेकिन सडनली थर्ड पर्सन केम्स इन और वो उसको उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो एक बंदे को कैसे दो लोगों से मोहब्बत हो सकती है? मैंने कहा ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब तो ड्रामा देखना पड़ेगा। तो बेसिकली उसको इसलिए उस ड्रामे ने बहुत ज्यादा उसकी अटेंशन कैच की क्योंकि आई न्यू दैट बेसिकली उसके हस्बैंड ने सेकेंड मैरिज की हुई थी, जो कि उन्होंने फैमिली को नहीं बताई हुई, बट we knew that he has another wife as well. उसको उस ड्रामे ने इसलिए उसकी अटेंशन सीख की because she was relating that to herself. The next point comes in is retention. When you see some model which is attractive to you and which appeals you in terms of its behavior, its circumstances, its originality, you try to retain information out of it, right? जैसे आपने उसके कोई बिहेवियर सीख लिया कि अच्छा इस एक्ट में बीवी ने कैसे परफॉर्म किया, ऐसे हुआ तो उसका क्या रिएक्शन था, एंड देन कम्स द रिप्रोडक्शन स्टेज, जिसमें आप अपनी ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन के अंदर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो बेसिकली यू सी हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, एंड देन कम्स द मोटिवेशन। उसको करने की मोटिवेशन आपके पास आती है, और फिर री होता है वो बिहेवियर in result of different environmental issues जो आप उसके साथ लिंक कर रहे होते हो। मैं ये आपको वन बाय वन डिटेल से भी बताती हूँ। जैसे आप अटेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि वो चीज आपको अट्रैक्ट करिए, आप एक्टिवली उसको देख रहे हैं जिस वक्त वो प्रोड्यूस हो रही है। अब वो कोई भी मॉडल हो सकता है। रिटेंशन में आप उसकी जो अपनी स्टेप बाय स्टेप उसके बिहेवियर को आपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन में कैच कर लिया, राइट? रिप्रोडक्शन में आपको जब वो सिचुएशन आई आपने उस बिहेवियर को परफॉर्म कर दिया, ठीक? अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई बड़ा पीसफुल बंदा है लेकिन उससे कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन अचानक बेकरी में किसी ने उसका वॉलेट निकाल लिया तो उसने इतना ज्यादा अग्रेशन शो किया और अजीब सा उसका बिहेवियर था, तो मे बी वो बिहेवियर उसने लर्न किया हुआ था क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा था कि किसी ने इस तरह शोर मचाया, बेकरी के दरवाजे बंद कर दिए, उनको हरास किया, तो उसका वॉलेट रिकवर हो गया, राइट? तो ये इस तरह से नहीं है कि हम कोई कंडीशनली कर रहे होते हैं, अनकंडीशनली भी हम लोग जो है वो मॉडलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। मोटिवेशन इज दैट द लर्नर मस्ट वांट टू परफॉर्म बिहेवियर. So if being taught something, then the counselor should encourage the learner to repeat the behavior just seen. अगर हम किसी थेरेप्यूटिक टेक्निक में इस बिहेवियर को, मॉडलिंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो वहां पर ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको इनकरेज करें कि यस दिस इज द वे यू हैव सीन एंड हाउ यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट दैट बिहेवियर, राइट? Reinforcement is that if the learner receives positive reinforcement, then this will increase the likelihood of observer to repeat the same behavior. अब अगर वो आपने ऑफ कोर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपने पढ़ी है कि जो बिहेवियर्स जो हैं जिनके ऊपर आपको कुछ भी इंकरेजमेंट मिलती है वो आपके रीइंफोर्स होते रहते हैं। एट टाइम्स कुछ बिहेवियर हमारे रीइंफोर्स नहीं होते, बट स्टिल हमारे वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाते हैं। Can anyone would like to tell me what is the reason behind that? That even if the behavior is not being reinforced by some other person around you, but still वो behavior reinforce होता रहता है।
तो what are the other channels which basically give reinforcement to this modeling process, या वो आपको खुद से ही आप उनको जो है वो सीख लेते हैं? मैम बेसिकली उसमें मोटिवेशन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो चीज आपको अगर सेल्फ प्लेजर दे रही है तो वो आपकी चीज इस तरह से रीइंफोर्स हो रही होती है। हाँ हाँ जी जी, कंटिन्यू रखें, और भी अपनी इनपुट दे सकते हैं। मैम अगर बच्चे की माँ बहुत अच्छी है विद अदर्स, ठीक है, और जब घर में गेस्ट भी आते हैं या वैसे भी ह्यूमन काइंड उसके अंदर बहुत ज्यादा है मेनली, तो बच्चे के अंदर भी अगर ये क्वालिटी है, अगर वो स्कूल में भी आती है, अगर उसके अगेंस्ट कोई ग्रजेस रखता है बट शी स्टिल बीइंग वेरी काइंड, और उसको एंड में उसको अच्छा ही वो मिलता है, तो इट्स काइंड ऑफ कि वो उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है या उसको लोग पसंद करते हैं उसकी नेचर की वजह से, बिकॉज उसकी मदर वो चीजें करती है और अपनी मदर को देखती है और अडॉप्ट करती है उन चीजों को, तो समवेयर उसको वो बेनिफिट मिल रहा होता है। या अगर किसी की फ्रेंड बहुत अच्छी स्टडी में बहुत अच्छी है और वो भी करती है, तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए अफेक्ट हो रहा है पॉजिटिव वे में मेरी लाइफ में भी, और मुझे लगता है ये चीजें इससे आ सकती हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, नाउ लुकिंग एट टू द टाइप्स ऑफ मॉडलिंग, देयर आर सर्टेन टाइप्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड, और हम उसकी बात कर लेते हैं, लाइक द लाइव मॉडलिंग, द सिंबॉलिक मॉडलिंग, द पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, द कोवर्ट मॉडलिंग जो बहुत ज्यादा हम देखने में हमें मिलती है, एंड द रोल प्लेइंग. सो वी विल टॉक अबाउट देम वन आफ्टर अनदर. Looking at the live modeling, the live modeling refers to watching a real person. Usually the therapist जो perform कर रहा होता है आपका desired behavior which the client has chosen to learn. For example, the therapist might model good telephone manners for a client who wants a job in a field that requires frequent telephone contact with customers. This could be a one example. Would you like to share any other example with me in which live modeling would be involved? बड़ी कॉमन है, हमें अपने इर्द गिर्द ये बहुत नजर आती है. मैम लाइव मॉडलिंग में ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है उसने अपने बॉस से कोई चीज कम्युनिकेट करनी है लेकिन वो कर नहीं सक रहा कि उसको किस चीज से इशू है, तो अगर थेरेपिस्ट उससे कहे कि तुम मेरे सामने एक वो क्या तुमने अपने बॉस से बात करनी है वो मेरे सामने करो, देन एज इट इज जाके वो चीज अपने बॉस से कम्युनिकेट करना. इज इट द लाइव मॉडलिंग? राइट. अब हम इसे दो स्टेजेस पे देखते हैं जिससे आपको इसकी ना रियल टर्म में ना अंडरस्टैंडिंग होगी. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें थोड़ी सी. हम अपनी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा लाइव मॉडलिंग किस जगह पे देखते हैं, कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमने खुद की होती है. हमारा लाइव मॉडल कौन होता है सबसे पहले, जो इमीडिएट पेरेंट्स. एग्जैक्टली, शाबाश. पेरेंट्स हमारे लाइव मॉडल होते हैं क्योंकि हम जब छोटे होते हैं हम उनको देखते हैं कि किस तरह से हमने खाना खाना है, किस तरह से हमने बात करनी है, कौन से वर्ड्स हमारी फैमिली में बोलना अप्रोप्रिएट हैं, कौन से वर्ड्स हमारी फैमिली में नहीं बोले जाते. जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं बिकॉज दे हैव सीन द लाइव मॉडल्स ऑफ देयर पेरेंट्स अब्यूजिंग अदर पीपल्स, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि ये तो चलता है. लेकिन अगर आपकी फैमिली में एक बहुत मैनर्ड गुफ्तगू की जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है एल्डर्स को, हमेशा घर के अंदर एंटर होते हुए इस चीज की प्रैक्टिस की जाती है कि आपके पेरेंट्स पहले राइट पांव अंदर लेके जा रहे हैं. बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको कोई लिख के नहीं देता, आपको कोई वैसे नहीं समझाता, बट सिंस यू सी दैट ईच डे those life models are practicing the behavior before eating, before drinking, before sleeping, those things, तो वो उसी वक्त हम उनको एज अ मॉडल सीख रहे होते हैं. राइट. अच्छा, इसी तरह हम जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं विद इन द फ्रेंड्स ग्रुप, थोड़े लाइट उस सर्कल में देखो, कभी आपके फ्रेंड्स कहते हैं यार मैंने ये बात कहनी है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उसे ये बात कैसे बताऊं. तो सम ऑफ द फ्रेंड्स गिव सम एग्जांपल, क्या तुम ये बात ऐसे कह लो, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये वर्ड बेहतर रहेगा, या इसी तरीके से आप डिफरेंट सजेशंस देते हैं. वो लाइव मॉडलिंग की एग्जांपल्स होती हैं और उसको फिर जाकर वहां पर परफॉर्म किया जाता है. So symbolic modeling जो है basically it's symbolic modeling includes film और videotape models demonstrating the desired behavior.
जैसे अब हम कहते हैं कि जी मॉडल्स वॉक कैसे करती हैं, या हमने कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज सीखनी है, या हमने कुछ जेस्चर सीखना है, या हमने सेटिंग का कोई स्टाइल सीखना है, या हमने किसी एक्ट को खास तरीके से परफॉर्म करना सीखना है, तो लोग वो सब चीजें, वो मैनरिज्म, वो अपनी डिबेट, कन्वर्सेशन स्टाइल, द सोशल स्किल्स, दे टेंड टू लुक फॉर द सिंबॉलिक मॉडलिंग, और वो लर्न करते हैं। और कई 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 घंटों लोग वीडियो टेप्स देखते हैं और उसके बाद वो सीखते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक बिहेवियर. Then the participant modeling is that in which the therapist models anxiety evoking behaviors for the client and then prompt the client to engage in that behavior. The client first watches as the therapist approaches the feared object. जो भी उसके लिए होता है वो पहले हम हिरार्की में डिसाइड करते हैं, and then approaches the object in step or stages wise. जैसे जैसे थेरेपिस्ट इनकरेज करते रहता है, जिस तरीके से हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में करते हैं ना, आपके फियर एलिमिनेट करते हैं, इसी तरह पार्टिसिपेंट मॉडलिंग में आपको वो ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया के लिए सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो आपको इसमें थोड़ा सा उसका इंटेंस लेवल उतना नहीं होता, उसमें आपको वो स्टेप बाय स्टेप एक चीज खुद करके दिखाते हैं, फिर कहते हैं आप भी करके देखो. लाइक अगर किसी को हाइट पे जाने का फोबिया है तो उसको कहते हैं देखो एक स्टेप मैं चढ़ा हूँ, अब तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम भी एक स्टेप चढ़ो, फिर एक और चढ़ो, देखो कुछ नहीं हुआ, नथिंग इज गोइंग हैपन, और इसी तरह करते करते उसको अप टिल टॉप लेके जा सकते हैं, राइट. सो दिस इज पार्टिसिपेंट मॉडलिंग. सो पार्टिसिपेंट मॉडलिंग की ये भी एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग कोई बैले डांस यहाँ पे सीख रही हैं बच्चियां, या हम इसी तरह कोई भी और एक्सरसाइज, एक्टिविटी, परफॉर्मिंग बिहेवियर, एनीथिंग कुड बी लर्न. Covert modeling is the one in which clients are asked to use their imagination, visualization, or a particular behavior as the therapist described the imagery situation to them in detail. So basically उसमें actual life में कुछ नहीं हो रहा होता, but क्या होता है कि आप एक situation देते हैं client को और उसको कहते हैं इसको assume करो. फॉर इंस्टेंस अगर आपने रैंप पे वॉक करनी है तो आप कैसे करोगे, एक एग्जांपल दे रही हूँ, या आपने क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है तो आप कैसे दोगे, या लेट्स से कि इफ समवन इज गोइंग टू स्पीक टू अ लार्ज ऑडियंसेस तो आपको उसके लिए कैसे करना होगा. तो जस्ट stand in front of a mirror and you imagine a huge crowd in front of you, and then you perform that specific behavior as the therapist has been guided to you, is known as covert modeling. Last one is role playing. Role playing is a technique that allows the client opportunities to imitate the model behaviors, which strengthens what has been learned. So role playing can be defined as a practice or behavior rehearsal. ये आप सबको पता है कि रोल प्लेइंग जो है वो बेसिकली हम करते ही इसलिए है कि हम मॉडल बिहेवियर से जो लर्न किया है उसको इमिटेट करें और उस बिहेवियर को हम खुद परफॉर्म करें, उसको प्रैक्टिस करें और उसको हम रोल प्लेइंग के थ्रू जो है वो सीखें. और फिर अगर उसमें हमें लगे कि हमारा सर्टन सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो देन अगेन यू नो वी गेट कोचिंग, और थेरेपिस्ट कैन फ्रीक्वेंटली कोच एंड प्रॉम्प्ट अस, एंड वो बता सकता है कि यहाँ पर आपकी रिएक्टमेंट ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी. रोल प्लेइंग इज एग्जैक्टली द वे, लाइक आप जैसे क्राइम रिएक्टमेंट के सीन्स देखते हैं ना, वो रोल प्ले हो रहे होते हैं कि कोई भी क्राइम सीन पर एक्चुअली किस तरह से कोई चीज हुई होगी और उसको उन्होंने इमेजिन करके उसको दोबारा से फैक्ट्स को सामने रखकर बनाया हुआ होता है. रोल प्लेइंग में इसी तरह बिहेवियर लर्न करने के लिए उन बिहेवियर्स को थेरेपिस्ट जो है वो कहता है कि आप पहले देखें और फिर उनको परफॉर्म करें, और उसमें क्लाइंट जो है वो उसको प्रॉम्प्ट्स मिल रहे होते हैं थेरेपिस्ट से कि यहाँ पर ऐसे नहीं करना, यहाँ पर ये बात नहीं करनी, यहाँ ये जेस्चर नहीं देना. एंड दिस इज वन ऑफ द वे दैट क्लाइंट्स आर गोइंग टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, एंड बाय डूइंग रोल प्लेइंग वो इसको सीख लेते हैं. So this is all about this kind of work which is being done in observational modeling and learning. So since the class time is going to finish in 4 minutes for this class, so I would like to ask if any question you have, or I will recap the today's lecture, and then I will send you another Zoom link, and you have to join that for your test and rest of the work, right? So any questions? So if there are no questions, I just like to recap that we went with the observational modeling and stimulus control lecture today, but we haven't covered the stimulus control so far. So we just talked about modeling.
the process of social learning theory, its definition, its purpose. Then we looked at it that what are the factors which are going to affect that. We saw that the stages of modeling process are attention, retention, production, motivation, and reinforcement. And we talked about them in detail with examples. Then we looked at the type of modeling, the live modeling, symbolic modeling, participant modeling, covert modeling, and role playing. And we looked at its example as well. So we will talk about the stimulus control shortly. So this is all about this lecture, and I am going to end this meeting